तो बापू अभी भाड़वा में कौन सा गाय अभी आप रखा है, क्योंकि ज्यादातर तो हमारे पास है। आपने मेरे पीछे को रहने नहीं दिया, सब लेके आ गए यहाँ पे। मैं ये प्रदीप बापू को पूछा, बापू ने मुझे 3 आंसर दे दिया। आपको भी मैं पूछ रहा हूँ, फिर से वो चालू हो गया मार्केट में। रेड इज गिर और व्हाट इज गिर? How did Bhadwa started? When did you start bringing cows to Bhadwa? When did the breeding started? So actually I'll just tell you the whole story. Hi everyone, this is Sujay from Hebeu Genetics. Today we have a very special guest with us, His Highness Mr. Pratap Singh Ji Jadeja from Bhadwa Darbar. Bapu, hi. Thank you. Thank you. Thank you very much. So, and Mr. Amit Kishan, who is our director. So today this podcast is giving you insights about how the Bhadwa came into picture, the Gir cows, about Gir cows, the progeny of Gir cows, why the bloodlines of Gir are important in the generations. As Sujay was telling that today we both are there to talk to Bapu. I mean, it's gonna be 2 questions, 2 people. That's the reason we have sat like this, where we can shoot Bapu with a lot of questions. And, Both are most welcome. We need to have clarities about the breed called Gir, and we need to answer many people about Yes. who is Pradeep Singh Rawal and what is Pradeep Singh Rawal and the line of Bhavnagar. So, Bapu, what is Bhadwa? I mean, how did this, the origin of Bhadwa started? First of all, I would like to thank you all for inviting me here. Thank you, Amit Bhaiya. Thank you. Suresh Bhaiya. Actually, Bhadwa and Bhavnagar both are just the similar things. Okay. That depends on each other. Okay. How we have just corresponded with 2 other things. Same blood actually that is. But everybody's choice is different on different characters, different lineways. But actually both are the same. Okay. So Bapu, Yeah. how did Bhadwa started? When did you? I mean, I think your father, Mr. Raghavendra Singh Ji Jadeja, when did you start bringing cows to Bhadwa? When did the breeding started? So actually, I'll just tell you the whole story. When my father, at the time of his marriage, because Pradeep Singh is my uncle, my mama. Yes. Because his father and my mother's father, they both are real brothers. So just the family relation. So at that time, when my father's marriage time, everything was arranged in Bhavnagar. And even Krishna Kumar Ji, he had arranged everything at his place and all. At that time, he took my father to his Gausara. And at that time, my father asked him some questions, and whatever he told him, whatever he taught him, all his queries were there. Then from there, everything had been fixed in my father's mind regarding the breed characters and everything. So when he came back to Bhadwa, at that time with my grandfather also, we used to nearly about 80 to 90 cows at that time. So he just came here, then he just decided for the selection and of those cows. From that, he just selected 40 cows and 40 just gave it to other persons who were interested. From that onwards, then screening by time to time. He selected some animals. From then, after that, he brought some animals from Bhavnagar, and from that, our foundation had started. So, Bhavnagar and Bhadwa is the combination of both the things. Both the things. Okay. Basically, it's came from Bhavnagar to you to Bhadwa, and then you started breeding. Yeah, then we started. Okay. So actually, here to put it across, as Bapu was saying, there is no difference according to me. If you see the pedigree of the cows, Bhadwa, if you see the pedigree of Bhavnagar, I mean, everything is the same. It is 2 faces of same coin. I mean, it is Bhavnagar, then turned out to be a Bhadwa, and Bhadwa, they religiously did the breeding, and that's how the line Bhadwa started. They're just 2 things traveling in a parallel way. Yeah, exactly. I mean, you could tell Sagwadi as the major Goshala from Sagwadi. There is a subsidiary Sagwadi in Bhadwa. So that's it. Yeah, that's true. So, I mean, today most of the breeders who are doing breeding, it might be our farm or it might be XYZ farm in the market. So, they all have a bloodline from Bhavnagar. So, if I'm right,
Yeah. See, if Bhavnagar would not be there, I think the breed of Gir cattle would never be there in the world. Sorry, not in world, but in India. Yes. Just because of Bhavnagar only, all the cattle, whichever lines are developed, basis goes to the Bhavnagar side. Agreed. Yeah. Agreed. Even the Brazil, if you ask Yeah, me, the even the Brazil also. Krishna, Yeah, Krishna, which went to Brazil, that is also from Bhavnagar. From Bhavnagar Most only. of the, I think you would have visited, you have visited many times. Most of the cows in Brazil or the bulls or they the are having bloodline, the bloods of Bhavnagar. I think it breed. comes from Krishna only, right? See, for sure. I mean, if we talk about the lineage, I mean, if we talk about the old cows and things like that. See, I mean, somewhere where if we talk about Bhavnagar, so few cows from Bhavnagar went to Brazil. And the same cows of or bulls of Bhavnagar went across the state of Gujarat. So anyone whom you take in the entire state of Gujarat or the entire India, they will have at least 1% of Bhavnagar blood in their cow for sure. Yes. Without that, there is no Gir. And it's all, I mean, see, I agree. Mr. Krishna Kumar Singh ji, the His Highness of Bhavnagar, he did a beautiful breeding. And I was listening from Raghavendra Singh Jadeja ji, Bapu's father, telling that about he had about 30 bulls, 30 bulls. almost 30 bulls only for the breeding. Purpose. That's how selective breeding they used to do in Bhavnagar. And then my grandmaster, I mean my guru, Pradeep Singh Rawal, who sat on these cows for almost like 60 plus years. Yes, yes. I mean, he dedicated his entire life. Though he was an army man, whenever he used to come to house, lay after his army time, he used to focus on breeding. After his, service in army, he started rigorous breeding in animal husbandry. That's how the breed of Gir is alive today. See, we could say, I mean, I could tell, boss, it is my line. Tomorrow, my friend Deva could tell it is Lal Peri line. And one more friend from Porbandar, he could tell it is his line. See, anyone can tell it is our line. But at the end of the day, some it is always percentage from of Bhavnagar. blood. It is only from Bhavnagar. Yes. So that's how we are all there. Even today, if we are trying to do some kids, I mean, when we are trying to get a few beautiful kids from old lineage, again it is Bhavnagar. You have to go there. You have to go there. We have used that lot of combinations on that. Yes. Bapu, coming to picture. So see, today a lot of breeders are there in the market. Yeah. So give us some insights, because you are a very experienced person. So give us some insights about how a breed should be carried. So Gir, so today a lot of people are talking about that bulls are the major part. So how does a breed start? How does a lineage start? See, some people say bull is important. Some will say cow is important. If you go for the bull, from where the bull is come, it is coming from the cow. Yes. And if you see where the cow is coming, it requires a father, that is the bull. So I think both are very important for selective breeding. Yes. And the selection which your choice, which line you want to go, which character you want, which color you want. According to that, you have to just select the animals, do the counting, and then you can go ahead. Then you can differentiate the different herds. So I agree with Bapu. As Bapu was telling that you need both Adam and Eve to carry the line. But Bapu has also some formula which he is carrying out in his farm. I mean, see, if you see, for an example, if I have to say what the wonder which Badwa has made right now, I mean, the formula which they are doing right now, there is a cow by name Rucha. Yes. Very beautiful cow. Very, very beautiful cow. And she gave to 3 daughters in Badwa. Yes. One is Rucha 1, Rucha 2 and Rucha 3. Yes. So, if we talk about Rucha 1, now Bapu wanted Rucha's line to carry forward. So, he crossed Rucha with Lily Dino. And he got a bull by name Rustam. One of the exceptional bull today which is there in Gujarat. So, now what Bapu did? Now Rustam was crossed with his own mother, which is Rucha 1.
and now they have got this beautiful offspring available. Yeah. And that is almost like 100% Rucha only. Because we have just collected Yeah. that. You were showing me photo Yeah. yesterday. Yeah. The same. So it is always a line. I mean, it Yeah. is you who decide which line you want to You carry. want to carry forward. Either yes. you want to carry the female line or else you want to carry the male line. It is you who should decide which is the line which you want to excessively take it forward. That's how the breeding happens. Because see, if you do close breeding, sometimes you get a very extraordinary animal. But you should judge whether it is having positive points in it or negative. If negative is there, then you always get spoiled. Yes, yes. So yes. that is most important. You should do the culling. Yeah. See, you should be ready to take that answer no. Yes. I mean, Adam and Eve, very important. Then, if you want to go only through the Adam, you can go only through the Adam. Or Yes. else, if you You want, want to to go the only lineage through of the you Eve. can only go Yeah, through yeah. the Eve. It is on you what to decide. Yeah, that's true. So, Bapu, see, today there are people doing breeding focusing only on milk, who are focusing on beauty, some focusing on the pedigree. Yeah. So, at the end of the day, so what result should it matter? See, main thing is whatever you are doing, at least it should be sustainable. Sustainable, yes. Yes, because then only you can carry on. Some people do it as their hobby. Yes. Some do it as a business. Yes. Yes. So which line you are going? You are Yeah. going for breeding. You want to go for breeding. Whether you want to go for dairy, whether you want to go for agriculture, organic product, if you want to use them, or you want to do just seva, then there are different sections. Now you have to choose on which line you want to go. According to that only. But breeding is very difficult. It is not that easy, which everybody thinks. Because if there is anybody who want to just start for this thing, I always, so many people come to me, I tell them, before purchasing, you first get some knowledge about this breeding. Yes. Then only you will be able to go ahead. Otherwise, you will just go down. You'll just be spoiling your herd. You will be spoiling your herd. Yes. So yes. And another thing is that nobody will be able to cheat you. Yes. Because in the market at present, if you see, people's youngsters, they want to go, they have very good ideas. They are dreaming to do some project. But just because of the middlemen and all, they have all collapsed. So, Bapu, even I have this question. Bapu, according to what Sujay was asking you, I mean, I'll correct that question. Yeah. So, Bapu, see, we want to do breeding. Yeah. Okay. At the end result, what should be our agenda as the end result? अगर हम एक बुल को एक गाय से छोड़ रहे हैं, हमको उससे क्या चाहिए? पहला चीज. See, important milk is most important. Yes. First thing is milk. Because if there is no milk, then you cannot maintain end result should be because there are many different products from cows, not only milk. From cow dung, you can make vermicompost. Then from urine, you can do work and all medicines are being there, other products. So if you do value added in those products, then only you can sustain your farm. लेकिन बापू हमको वो जो बोलते हैं ना गोमूत्र काऊ डंग ये सब चीज हमारा दिमाग से हम काम कर लेंगे. At the end of the day हमको चाहिए सिर्फ दूध. main thing is चाहिए तो हर किसी को अगर आज दूध के लाइन में जाना है तो कौन सा लाइन पकड़ना है बापू? See, there are so many in previous time there were so many good bulls which progeny have given very good milk. So when you are going to select your bulls for your next generation, you should just go verify everything. You should go backward, which lines are there and what type of blood is there in your future bull. That is most important because that sometimes there are some drawback characters also. So you should be able to judge the characters and count wise, blood counting wise you can do. Then you can select your future bull. And that will, and one another thing is you should try to get that which bull is being more dominant. Sometimes cows also will be dominated. It will not allow the bull to be dominated in the progeny. Yes. So for selecting your next generation, which is going to be more dominant, कौन from which side you are getting, कौन सा गाय से इस्तेमाल किया तो अच्छा प्रोजनी आएगा. आता है. फिर कौन से बुल के अंदर कौन से जीन ज्यादा है, वो नेक्स्ट जनरेशन में वो ही अगर फिक्स करता है वो डोमिनेंट है या रेसेसिव है, वो सब फैक्टर वेरी करता है. और आपके हड में से बापू अगर मैं आपके हड में से कोई गाय चूज करना है दूध के लिए, जी हाँ, तो कौन सा 3 गाय है जो मैं चूज कर सकता हूँ दूध के लिए? मेरी रुचा है, मेरी सोनल है,
फिर मेरी वो करनी वोट भी अच्छी है, भाग्यश्री भी अच्छी है, वैशाली भी, तो उसमें से मैंने बुल रखा था वैशाली नो, वो अभी आपके पास आ गया है, ऋषभ आपके पास है, रतिनो आपके पास है, सब मेन बुल आपके पास है ही। तो आप बोल रहे हैं आपके सब गाय में दूध अच्छा है? जी हाँ, क्योंकि स्टार्टिंग जो हमारा बेस जो भावनगर से आया था वो सुधानो, और उसके बाद संदीप, दोनों सेम ब्रदर, सेम मदर, डिफरेंट फादर, प्रूवन बुल है। तो और सुदानो का अम्मा का दूध कितना था बापू? तो वो अच्छा था, वो एग्जैक्टली तो मेरे को अभी मालूम नहीं है, क्योंकि जो मेरे को नहीं है वो मैं अभी नहीं बताता हूँ, जो मेरे को श्योर है वो वही बताता हूँ। सही। और उसके बच्चियों में कितना दूध आ रहा संदीप के बच्चियों में भी बहुत आया था, वो नेशनल चैंपियन भी हुई थी। कौन सी गाय? वो सुदानो और संदीप दोनों बाडवा से फिर भुवनेश्वरी पीठ में गए थे आचार्य जी के पास, और वहां कर भी आपको मालूम है मिल्क, क्योंकि ये दो बुल की वजह से ही स्टार्टिंग में ओल्ड मिल्क जिन फिक्स हुए हैं। और भावनगर में भी आप देखोगे तो जो प्रदीप सिंह बापू ने जो सिलेक्ट किया है वो सब सुधा में से ही ज्यादातर थे, और तोखार में से भी उसने बनाया है। तो ये सुधा वो 263, 263, 254 वो सब सुधा, वो सुधा और सकीना एक्चुअली वो दोनों सेम ही लाइन में से आ जाते हैं। जैसे मैंने देखा था 263 और 254 दोनों गाय में एक सुधा में 56 लीटर्स ऑफ मिल्क आया था। एक दिन में रिकॉर्डेड 56 लीटर्स, 56 पाउंड दिया पाउंड या लीटर, कम से कम 40 तो रख लो, 40 रख लो, तो ज्यादातर उसने उसी में से बनाया था। 30 रख लो भाई, आज 30 लीटर कौन दे रहा है? नहीं वो एक है, और ऐसा नहीं है कि वो पूरा दूध निकाले, बच्चे को भी पिलाया होगा। वो तो बच्चे को पिलाने के बाद का उसमें लिखा है। हमको 30 बस 56 वो लिखा है, हमको 30 रख लो, 30 रख लो, इससे अच्छा ना गिर में आपको। और दूसरा क्या है कि उसको एनिमल को कभी एक जगह से कई बार वो मिल्क निकालती है, अगर प्लेस चेंज हो जाती है तो उसके बाद भी उसके ऊपर वो डिफर हो जाता है, एडजस्ट होने में, वाटर में, एनवायरमेंट में। लेकिन गिर ब्रीड ऐसी है कि वो लगभग सभी जगह पे वो सेटल हो जाती है। थोड़ा टाइम लेगा, मगर लेकिन उसके इम्यूनिटी अच्छी है, उसका रेजिस्टेंट पावर अच्छा है, ब्यूटी है, इसीलिए तो पूरे वर्ल्ड को वो चाहिए। सही सही सही। अभी बापू दूसरा मेरा क्वेश्चन, बापू अभी पूरा मार्केट में चाहे अभी भी मैं प्रदीप बापू का स्टूडेंट हूँ, मैं सोन के उठने से पहले भी कोई पूछेगा क्वेश्चन आपको कौन सा लाइन बहुत पसंद है, तुरंत भावनगर। और बाद में बाड़वा में जितना प्योर काउस है तो मैं बोलूंगा बाड़वा। तो मैं एक बंदा हूँ जो भावनगर बाड़वा बोलता हूँ, कोई और बोलते है जसदन, कोई और बोलते है भुवनेश्वरी पीठ। एट द एंड ऑफ द डे हमको कौन से लाइन चूज करना है? आई मीन कैसे ये क्या हो रहा है मार्केट में? कोई बोलता है भावनगर चूज करो, कोई बोलता है बापू सिर्फ रूप के ऊपर काम ध्यान दे रहा था, दूध के ऊपर नहीं। ये ऐसा हम कभी नहीं मानते। नहीं, ऐसा नहीं, मैं और मैं मेरा सामने देखा है सुजय और राजू भाई, हम सब सामने हमारे नजर के सामने प्रदीप बापू ने दूध निकाला था। एक बल्टी होके दूसरा बल्टी, एक बल्टी कम से कम 6 लीटर से 7 लीटर का बल्टी तो होता ही है। तो वो बल्टी खत्म करके दूसरा बल्टी में बापू गया। वो गाय का नंबर है 324। ऐसा गाय हम देखा है, हमके नजर के सामने हम देखा है। तो हम ये नहीं मानते कि बापू सिर्फ रूप देख रहा था, बापू ब्रीड को देख रहा था। नहीं वो सही है, ओवरऑल एनिमल को देख रहा था। और दूसरे लोग जो बोल रहे हैं अभी कि भावनगर में मिल्क नहीं है, लेकिन वो जो प्रोजेनी आई है वो सिर्फ भावनगर के बुल की वजह से, या फिर वो काऊ की भी आगे की पेडिग्री देखनी चाहिए ना। बुल की वजह से ये मिल्क कम नहीं हुआ होता है, कभी कभी वो मदर साइड में अगर नहीं है तो फिर वो डिफ्यूजन हो जाता है। सही। जैसे कि अभी कोई भावनगर का बुल लेके आया, लेकिन तो बाहर का गाय में इस्तेमाल किया और बाहर का गाय में दूध नहीं है, तो बच्चे में ऑब्वियसली दूध कम ही रहेगा। तो वो थोड़ा कट तो कर डालेगा ही ना। सही सही सही। तो ये अपने गलती से वो शायद ओवरऑल देखना चाहिए आपको। ज्यादातर गायों में क्या हुआ है, मिल्क आया है तो वो किस में आई है, नहीं आई है तो किस में आई, वो थोड़ा स्टडी करोगे तो आपको खुद मालूम पड़ जाएगा। अभी मेरे को बापू मेरे को और मेरे एक दोस्त को, हमको भुवनेश्वरी पीठ बहुत पसंद आता है। जी हमको भुवनेश्वरी पीठ इसलिए पसंद आता है, उसका अड्डर स्ट्रक्चर बहुत बढ़िया। जी क्योंकि एंड जैसे अपना हमको पता है भुवनेश्वरी पीठ का बेसिक आई मीन बेसमेंट
बाड़वा से ही गए। भाड़वा से गए। जो संदीप और सुदानो सुदानो इधर से पे लगे, गए, संदीप उधर गया। वो फिर मिल वहाँ से ही सब बुला दाड़ो में भी गया। हाँ, दाड़ो में भी वो गया। भावनगर से भी भावनगर आए से थे। दाड़ो में भी गया। भावनगर से गए। नानो नानो सुदान भी गया था, सब अच्छे सब- अच्छे। और ये सब दूध वाला लाइन है। दूध वाला लाइन। फिर हमारा ये बगलियो बगरो भी वहाँ था, हाँ रूपानो गरकड़ो भी वहाँ रूपानो दिया था गरकड़ो हमारा सही। जो जहाँ पे उसी जगह से गरकड़ो से ही गोंडलियो पैदा हुआ। गोंडलियो वहाँ से वहीं पैदा हुआ। तो आई मीन आज भुवनेश्वरी पीठ में जो गाय है, जी हाँ। जो सब कुछ है, आई मीन हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, घनश्याम जी। आचार्य जी महाराज जी, who has done a he is also good very job. good person Yes. regarding cows. अभी मार्केट में बापू हमको बहुत लोग पूछता रहता है, भाई ये गाय गाय सिर्फ रेड इज गिर। मैं ये प्रदीप बापू को पूछा, बापू ने मुझे 3 आंसर दे दिया। आपको भी मैं पूछ रहा हूँ, फिर से वो चालू हो गया मार्केट में, रेड इज गिर और व्हाट इज गिर। See, एक्चुअली गिर क्या है, गिर के अंदर कोई भी कलर होगा, इवन व्हाइट कैन बी गिर, ब्लैक कैन बी गिर, डिफरेंट विद व्हाइट स्पॉटिंग, सब कुछ में रेड स्पॉटिंग होता है। लेकिन जो उसका कैरेक्टर है और जो उसकी बुक लिखी हुई है ज़ेबू कैटल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके अंदर पूरा वो कैरेक्टर लिखा, उसके अंदर मेन उन लोगों ने इंडिकेशन के रेड कलर इज सम टाइम एनकाउंटर। ओके, इट कैन नॉट बी देयर, ऐसा नहीं है, हो सकता है, बट रेड कलर कैन सम टाइम बी एनकाउंटर। एनकाउंटर बोलेगा तो कभी कभार वो आ जाता है रिजल्ट। और एक्चुअली जूनागढ़ नवाब ने भी पूरा ब्रीडिंग किया था, वो भी शौकीन था, उसने अलग अलग कलर का हट पूरा बनाया था, तो रेड कलर बहुत नहीं था, तो उसमें से वो रेड सिंधी ला के उसको यूज किया था और उसकी वजह से रेड कलर ज्यादा डोमिनेट हो गया। और अभी आप सब टेम्पल में देखोगे, सब भरवाड़ लोगों के पास देखोगे, तो सब जगह पे ज्यादातर मोरबी साइड, वो सब वाकानेर थान, उस साइड में भी आपको मेजोरिटी रेड कलर दिखेगा, क्योंकि रेड कलर ज्यादा डोमिनेट हो गया सब जगह पे। सही। बाकी जो दूसरे जो है, कलर इज वेरी माइनर इन ब्रीडिंग, बट द कैरेक्टर शुड बी देयर। ओके, मेन बिकॉज गिर ब्रीड जो है वो ब्यूटी के लिए भी पहचानी जाती है सब जगह पे। सही। आप देखोगे तो वो फर्स्ट साइड में आपको उसको वो इम्प्रेशन हो जाएगा दूसरी ब्रीड की। साहिवाल भी है मिलकर, लेकिन उसका ऑर्डर आप देखोगे तो 2-3 लैक्टेशन के बाद वो बड़ा ऑर्डर हो जाएगा, टिट्स का प्रॉब्लम हो जाएगा। और मैं तो वो मानता हूँ अमित भैया कि 5, 6, 7 लीटर इज वेरी गुड मिल्क, उससे ज्यादा क्या करने का है। सही। और जो आपको कॉम्पैक्ट में मिलता है तो स्ट्रक्चर बढ़ाने में क्या फायदा, एनिमल भी सफर करती है। कुछ लोग क्या करते हैं, ज्यादा मिल्क निकालने के लिए उसको एक्सेस फीड करेंगे, और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जिसके डीएनए के अंदर जो आप खुराक उसको देंगे वो मिल्क में कन्वर्ट करेगी। कुछ ऐसे होते हैं जो वो फैट में कन्वर्ट करेगी। सही। और ब्राजील वालों को क्या है, उसको बिग स्ट्रक्चर चाहिए, मेन उसका मोटिव क्या है, बीफ। उन लोगों को साइज चाहिए, इसलिए तो उन लोगों ने डीएनए के साथ छेड़छाड़ करके वो बना दिया क्रॉस करके। सही। लेकिन मिल्क भी वो हार्मोन से निकालते हैं, 2-3 लैक्टेशन के बाद उसको स्लॉटर हाउस में बेच देते हैं। और हमारे यहाँ 20-20, 22 साल की गाय अभी भी है। सही। और रिसेंटली हमने भी देखा रुचा को 23 साल 23.5। और दूसरी बात है कि हमारे जो कैटल है, आपको दूसरी जगह से हमारा भाडवा लाइन आपको एकदम कॉम्पैक्ट एनिमल दिखेगा। हाँ, वो सही। बड़ा स्ट्रक्चर नहीं होगा, कॉम्पैक्ट होगा, लेकिन उसमें रेजिस्टेंट पावर भी ज्यादा रहेगी, उसकी इम्यूनिटी भी ज्यादा है। और आपको उसका देखोगे तो लैक्टेशन भी बहुत ज्यादा लैक्टेशन उसमें से आपको मिलेगा। सही। और दूसरी बात बहुत तेज है। अगर बाड़वा गाय नहीं मारा तो वो बाड़वा गाय है ही नहीं। जो गाय तेज है उसमें बाड़वा का गाय भी बुल भी। मेरे को मैं बड़े बापू के पिताजी के साथ बात कर रहा था। जब मैं बात कर रहा था तो मैं पूछा, आपका गाय इतना तेज क्यों है? वो बाड़वा इसलिए वो तेज है। नहीं, क्योंकि हमने बाहर के जैसे वो बाहर का बुल यूज ज्यादातर किया ही नहीं है। हाँ। हमारे जो हद में यूज हुए है, हमारा खुद का हुआ है, या फिर हमने जो भावनगर से आया है वही है। और भावनगर से कौन सा बुल यूज किया था? तिलक भी वहां से आया था, फिर रूपानो गरकड़ो भी वहां से आया था। पहले गरकड़ो बोले तो अपना रूपा मोटी का बेटा। हाँ, वह रूपा मोटी का बेटा। ओके। और फिर स्टार्टिंग में सुदानो वहां से ही आया था। ओके। स्टार्टिंग वहां से ही हुआ वो, और उसके सुदानो संदीप। बाकी जो रतिनो रतो
वो सब यहाँ आप- फिर आपके वैशाली farm में वो हुआ? सब यहाँ पर ही हमने डेवलपमेंट ओके, किया है। आपका अभी हर्ट से रुस्तम, हुआ। हाँ, वो सब यहाँ पर ही है। तो बापू अभी एक ये मेरे को क्वेश्चन था, कोई ब्रीडिंग कर रहा है, हाँ जी। ठीक है, शायद अभी हम नया नए बच्चे लोग हैं जो ब्रीडिंग आप सीखना बच्चे लोग नहीं है। तो हम नए नए लोग जो ब्रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो हम ब्रीडिंग कैसे चालू करें बापू? आई मीन शायद सबको बाड़वा नहीं मिलता है, सबको हाँ। भावनगर नहीं मिलता है। अभी मैं अपना दोस्त को वो इतना ताकत था कि वो पूरा भावनगर खरीद लिया। हाँ। हमको हर किसी हाँ, को हाँ। इतना ताकत नहीं कि पूरा भावनगर को सही। खरीद सकते। और बापू भी नहीं दे रहा था, सही सही। बापू भी हर किसी को नहीं दे रहा था। बापू मुझे बोल जिसको रहा उसका था, भरोसा था हाँ, उसी को ही वो हाँ, देते थे। व्हेन बापू जब मेरे को बफेलो दे रहा था ना, बेटा मैं आपको दे रहा हूँ तो मैं आपके ऊपर पूरा भरोसा रखता है। जिसके ये- पास trust है। I wish to shoot them rather than sending them- rather than sending them out. Yes. So this was the words. You should take care of them like I take care of them. ऐसे बोला था बापू। That's why they have not जैसे been tied आज till now. अपना किशोर भाई जैसे उनको संभाल रहा है, हाँ। इसीलिए उनको दिया बापू, सही। नहीं तो सही। नहीं दे रहा था। सही। और He trusted those people. yes, yes, very Whoever he gave either cows or buffaloes, he trusted them very dearly. ये उनको बहुत अच्छा मित्र मान रहा था तो दे दिया। तो ऐसे अभी हर किसी को ये नहीं मिलता है, नहीं तो हम मिलता, लोग सही। क्या करना है बापू? जितना हो सके वो जिससे प्रोडक्ट ज्यादा कैसे तो बन सकता है। आईवीएफ वैसी हुआ तो बन नहीं पा रहे हैं। हाँ, आपको वो एडप्ट करना पड़ेगा, उसके ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक और है। और और क्या है अच्छे- ना, मार्केट में अभी लोग बोलते हैं कि 13 लाख का, 30 लाख का, 20 लाख का गाय खरीदने का जरूरी नहीं है, या 10 लाख का, या देखो, 50,000 का। कोई भी हीरा हाँ। अब खान में पड़ा तब किसी को मालूम नहीं पड़ा। जो पहचान जाता है वो देता है। हाँ, और अगर कोई देगा तो जिसके पास है वो उसकी क्वांटिटी भी बढ़ाएगा। सही सही भाई अगर उसकी वैल्यू नहीं देगा तो कौन उससे ज्यादा बनाएगा? सही सही। वो भी सोने का इसी- दाम सोना ही होता वो है। वो पित्तल पित्तल का का दाम दाम नहीं पित्तल होता होता है। पित्तल ही होता है, सोने का दाम सोना ही होता है। सही तो सही। भाई आज मैं जमीन 40 में भी बेचता हूँ, 50 में 50 भी में भी बेचता हूँ, 1 बेचते हैं। करोड़ में भी बेचता हूँ, क्योंकि मैं इतना मेहनत करके, आपको एक स्टोरी पता है ना, हाँ, हाँ। जहाँ पे वो शिप खड़ा हो जाता है, हाँ, पूरा लोग आके उसको हाँ। रिपेयरिंग करना देखता है, किसी के पास नहीं होता है, लेकिन एक बंदा आके हथौड़ी में 2 मार के उसको चालू खड़ा करा कर देता देता है, है हाँ, और सही। बोलता है मेरे को 10 करोड़ चाहिए। तो वो क्यों बोलता है? उसके एक्सपीरियंस Experience और है। उसके नॉलेज के हिसाब नॉलेज के से। वो तो जहाँ पे मारना है वो सिर्फ उसको उसको ही पता पता है, इन लोग को पता है कैसे वो ब्रीडिंग Breeding करना करना है, किस ब्लड से कौन सा ब्लीड वो important है। तो कौन सा ईरा निकल के आएगा बोल के इनको पता है। और अमित भाई दूसरी बात ये है कि अगर आपको ब्रीडिंग करना है तो कोई भी एनिमल रहेगा उसकी पेडिग्री इज मस्ट। सही सही। लेकिन वो पेडिग्री भी सही होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है आपको कौन सी लाइन में कौन ज्यादा बढ़ाने का है। वो कैलकुलेशन के लिए आपको वो पेडिग्री तो चाहिए। सही। और अगर वो सही रहेगी तब आप आगे बढ़ जाएंगे। अभी आप जो बोल रहे हैं सही है, मगर अभी मैं एक नया बंदा हूँ जो गाय रखना चाहता हूँ। जी हाँ। तो मेरे पास उतना पैसा डाल के मैं गाय खरीदने का मेरा क्षमता नहीं है जी। तो उन लोगों को आप क्या सलाह देते हो? देखो अभी मार्केट में तो आपको कहीं ना कहीं किसी के ऊपर भी भरोसा तो रखना पड़ता है। सही। जब आप उसके साथ ज्वाइंट होएगा तभी आपको मालूम पड़ेगा कौन कैसा बंदा कैसा है वो सब। सही। फिर मगर बाद वो- में मैं कभी इसमें क्या बोलना चाहता हूँ, हर किसी को शायद बागेश्री नहीं मिल सकता, शायद पांडेर नहीं मिल सकता, शायद अंबिका नहीं मिल सकता। सही। तो हर किसी को शायद उस लाइन का नंदी तो मिल सकता है। हाँ, जैसे हाँ, बाड़वा हाँ। बापू के पास, अभी बाड़वे बापू के पास कम से कम 5-6 तो नंदी होगा। सही। साल में कम से कम 10-15 तो नंदी हो जाएगा। वो 10-15 नंदी दे सकता है, सही। वो गाय नहीं दे सकता, क्योंकि इनको वो गाय क्योंकि गाय बेस बहुत बेस जरूरी तो है, वही है, बेस वही है। बेस तो वही है। तो जो नंदी पैदा होता है उस नंदी को ले सकता है। और उस हमारे पास नंदी को लेके आके हम आउट ब्रीडिंग कर सकते हैं। सही। आई सही। मीन जैसे मेरे को बाड़वा पसंद हो गया, मैं बाड़वा का एक नंदी लेके आता हूँ। और भावनगर पसंद हो गया, भावनगर का एक नंदी लेके आता हूँ। वो नंदी को लेके आके अपने गाय में डालेंगे तो हमको एक बच्चा जो पैदा होता है, हमेशा बापू ये वर्ड बोलता रहता है, बुल इज हाफ हाँ। वर्ड। ऑफ हाँ। ऑफ द हर्ड। Yes. वो बुल को चुनना बहुत जरूरी है। देखो अगर आपके पास
50 काउज है, हाँ हाँ बराबर है, हाँ एक नंदी है, हाँ तो जो 25 एक्चुअली जो काउस की जो वैल्यू होते हैं इतनी एक बुल की वैल्यू बुल की होती वैल्यू है, सही सही क्योंकि वो बुल सभी गाय के आप क्रॉस करेंगे तो जो प्रोजेनी आएगी तो उसमें सभी में बुल का भी 50% सही आएगा और गाय का भी 50%, जो वो 50 प्रोजेनी जो काफ आएगा उन सब में आएगा वो, और इंडिविजुअल गाय का आएगा, लेकिन कॉमन तो वो बुल का आएगा ना सब बुल में। का आएगा सही। तो हर्ड हर्ड तभी में वो आप 50% वो बुल रहेगा। हाँ, क्योंकि वो तभी वो सिमेट्रिकल होएगा, अगर सब कैटल में वो सिमिलर रहेगा तभी आपका हर्ड सिमेट्रिकल सही दिखेगा। सही तो सही बापू अभी जो शायद मैं समझ लीजिए, मैं रतिनो लेके आ गया, जी हाँ रतिनो लेके आके मेरा सब बाहर का गाय में रतिनो डाल दिया, अच्छा बच्चा ले लिया। जी हाँ। तो अभी मेरे को एक लाइन कैरी फॉरवर्ड करना है। तो अभी क्या है कि रतिनो का जो भी आपको प्रोजेनी आ गई, नेक्स्ट टाइम आप उसमें वो ऋषभ डालो, ओके, तो जो आपका जो आउटर का उसका जो तो आप पेडिग्री बोल रहे आपको हो मालूम नहीं है। आपका दूसरा नंदी लेके आना है, हाँ हाँ, वही लाइन से। वो वही लाइन में, तो उससे क्या होगा, वो भाडवा सब में पॉजिटिव होता रहेगा। जो आपने पहले बाहर से जो खरीदा है वो अननोन पेडिग्री एनिमल तो नहीं है, सही जो सही नहीं है उसी में से वो ब्लड एक जनरेशन जैसे आगे बढ़ेगा तो वो एक जनरेशन का ब्लड निकल जाएगा पीछे सही। का। तो तो अब 4 जनरेशन या 5 जनरेशन में आप देखोगे, 3 जनरेशन में तो वो पूरा वो ही फिक्स हो जाएगा तो जी। मेरे को अगले 3 या 4 जनरेशन तक मेरे को बाड़वा का नंदी जरूरी है। तब अगर आपको चाहिए तो पांडवा बनाने का है तो और आपके पास ऑलरेडी है ही। नहीं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। नहीं सही है। अगर किसी को नहीं, एक लाइन, दूसरी बात है अमित भैया, ऐसा नहीं है कि 3 जनरेशन में अगर बुल ज्यादा डोमिनेंट है तो आपको फर्स्ट जनरेशन में सेकंड जनरेशन में भी वो स्टेज पे आ जाता है। ये तो हम काउंटिंग के लिए एक्सप्लेनेशन के लिए 50-50 करते हैं, 70-30 भी हो सकते हैं, 60-40 80-20% जैसे भी कि डोमिनेंट हो जाते हैं। 50% भाड़वा का होगा ऑलरेडी, हाँ, तो उसमें वो 100% में 75% हो जाएगा। सही सही। एक दो पीढ़ी और में भी आ ज्यादा सकता है। वो डोमिनेंट कितना होता है वो बुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रीडिंग के लिए। और बापू अभी गुजरात में अभी बड़े बड़े घर सब सही है, जैसे कि भावनगर, बाड़वा, जसदन, भुवनेश्वरी पीठ, उसके साथ बहुत पुराने वाले आई मीन CBF फार्म, जूनागढ़ फार्म, जामनगर फार्म, जो भी है वो सब, ये सब मैं देखा। और मैं दूसरे लोग को भी देखा, जैसे अपने बरवाड़ भाई लोग, मालदारी भाई लोग, इनको भी देखा। इनके हर्ड में भी गाय अच्छी गाय है, बहुत अच्छी होती है। हम उसको आई मीन लेना है कि नहीं लेना है? नहीं, आप ले सकते हैं अगर आपका चॉइस है, लेकिन उसी में से आप आगे चेंज करके कर सकते हैं उसमें से। मैं बहुत देखा है बापू। देखो आप अगर मोरबी साइड, वाकंडर साइड की गाय आप लेंगे तो उसमें फैट % भी ज्यादा रहेगा। उस साइड में दूध भी अच्छा है क्योंकि वहाँ पर हिली एरिया है, फिर वो और गाय भी इम्यूनिटी भी ज्यादा है और साइज स्ट्रक्चर भी आपको मिलेगा, और उसमें आप ये डाल के आप उसी में से वो चेंज करके आगे का संवर्धन कर सकते हैं। सही। और बापू उसमें मेरे को देखिए, मेरे को बहुत पसंद है वाकनेर या मोरबी साइड में। मेरे हर्ड में कम से कम 50% तो वही रहेगा। लेकिन मेरे को ये भी चाहिए, ये भी पसंद नहीं आते उस गाय में, थोड़ा लंबा कान। जैसे प्रदीप बापू बोला, जैसे राघवेंद्र सिंह बापू बोला, जैसे आप बोल रहे हैं, मेरे को वो लंबा कान थोड़ा पसंद नहीं आता। कुछ वो आपको कैसे करेक्शन करेंगे? वो आपके बुल से आप करेक्शन कर सकते हैं, 2-3 जनरेशन में फिर वो हो जाएगा। तो जैसे अभी वो रतिनो करेक्शन कर रहा है ऑलरेडी हमने देखा है। कान में भी वो छोटा दे देगा। वो माँ का कान, आज सुबह भी एक बच्चा हुआ रतिनो का, माँ का कान बहुत लंबा है, बच्चे का कान बहुत छोटा है। इतना मतलब बुल डोमिनेंट है। बस मेन वही है ना मेरा कहना, जो आपने आपसे मैं बोल रहा था कि बुल कितना डोमिनेंट रहता है उसी प्रकार आपका हार्ट पूरा सिमेट्रिकल हो सकता है। जो आपको चॉइस है वो सिलेक्शन के आप कर सकते हैं। तो बापू अभी भाड़वा में कौन सा बुल इस्तेमाल हो रहा है? अभी मेरा रुस्तम यूज कर रहा हूँ मैं। रुस्तम, क्योंकि मेरे को मेरी गाय सब अभी मेरी जो रुचा, जो मेरे को पिताजी को सबको पसंद थी, ज्यादातर वैसे ही हमको पूरा बनाने का है, पूरा हर्ड। रुस्तम का माँ जो है वो रुचा वो बाप नहीं, रुचा वर्ड, और उसके मदर है रुचा। तो रुचा की डॉटर का बछड़ा जो था वही यूज किया। पर अभी मेरे को पूरा रुचा बनाने का है, तो इसलिए ब्लड कलेक्ट करने के लिए फिर मैंने वो सन और मदर को भी क्रॉस किया है, वो ब्लड कलेक्ट करने के लिए। और अभी मेरे को एक बछड़ा आया है, वो मेरा फ्यूचर बुल है। अभी बापू
वो रुच्चा में क्या छुपा के रखा है? कुछ छुपा के रखा नहीं है। तो रुच्चा क्यों यूज कर रहे हो? वैशाली क्यों यूज नहीं किया? यूज नहीं क्या? किया। रुच्चा को क्यों यूज कर रहे हो? वैशाली को क्यों यूज नहीं क्योंकि रुचा जो है वो पुराने जो गाय थी उसके जैसा पूरा स्ट्रक्चर और वो है, हाँ। साइज स्ट्रक्चर आप वो देखोगे तो वो पूरा बड़ा है, सही। और हमारा भाडवा का पूरा कॉम्पैक्ट है। तो हम सोच रहे थे कि थोड़ा बड़ा भी हो जाए और पूरा सिमेट्रिक, और उसका जो कलर है वो भी सबको अभी सही, पसंद है। सही सही। सही सही। और इसीलिए। बापू मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन है। जी जी जरूर। जैसे कि अभी भावनगर के बापू प्रदीप बापू ने बहुत सारे सीमन स्टॉक कलेक्ट किया, जी हाँ, आप क्यों नहीं कर? क्योंकि मेरे को तिलक का बहुत स्ट्रॉ चाहिए था। जो मेन आप आज रख लिया होता, एक एक्स्ट्रा कम से कम 50,000 हाँ। लाख रुपए में बिकने वाला था। नहीं, मैं तो 5 लाख में भी बेच देता। क्योंकि तिलक जो बुल बहुत है बहुत अच्छा वो बुल था, ऐसा बहुत बुल था। उसके जमाने पे वो दुनिया का नंबर 1 था। उसका नंबर हेड, वन था। लेंस, सही, सही। हॉर्न पैटर्न, वो मसल, हेड का शेप, हॉर्न जो पूरा पूरा डिफर ही था तो पूरा। वो आप भाड़वा में क्यों नहीं करते? नहीं, अभी सोच रहे हैं, अभी सबकी डिमांड है तो सोचेंगे। जरूर जरूर करना। मैं तो बापू के ऊपर इतना प्रेशर लेके आ रहा हूँ, बापू करना जरूरी है। क्योंकि देखो भाई, आई मीन हम ऑलरेडी कोच चुके हैं, बहुत कोच बहुत चुके बहुत नहीं, सही है। बहुत हैं। कुछ है। हम तिलक के बारे में बात कर, तिलक से भी बेहतर नंदी नंदी था। आई मीन जैसे रत्तो, हाँ, रतो भी बहुत, उसके All time favorite। उसकी प्रोजन में भी बहुत मिल्क निकला था। हाई मिल्कर, High milk। ब्यूटी, सही सही। the way that this bull used to Bull was very compact, but the हाँ, progeny were very progeny। good and milk जैसे dense। कि वैशाली दे रहा है अभी, हाँ, हमारे पास जो वैशाली सही। है वो तो एक कॉम्पैक्ट एनिमल है, क्योंकि हाँ। मेन इंटेंशन क्या है कि जो आप रख रहे हो उसका जो वायबल तो होना चाहिए। अगर कॉम्पैक्ट एनिमल कम खाता है उसके मुताबिक वो आपको एक्सेस दे रहा है, बड़ा की वजह अगर कॉम्पैक्ट रहेगा तो वो अच्छी तरह सब सब सही। मगर सब ये जगह ऋषभ इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या ऋषभ उसके बाप को पकड़ लिया भाई। वो लीड ही नो सही सही सही, वो भी है और माँ का कैरेक्टर भी कैरेक्टर है, भी है, तो इसलिए वो वो बॉडी हो गया। और अभी जो स्किन उसके टेक्सचर, प्रोजेनियर है वो ये हाँ, वो हम पूरा देख रहे step ही हैं। करते हैं। सही। और अभी देखिए, आई मीन बापू जो बोल रहा था अपना रुस्तम के बारे में, जैसे तुम बोल रहा था अपना ऋषभ, दे आर लाइक आई मीन जीन, कहीं ना कहीं वो जीन हिट हो जाता है। सही। वो फ्यूजन जो हो जाता है, हाँ। कभी जो फ्यूजन मेरे होता को है। हमेशा प्रदीप बापू बोल रहा था, हाँ। see there are only two ways of getting very exceptional offsprings. Offsprings। One is like A blood और A blood कभी मिला नहीं होना चाहिए। Two दोनों unlike poles। हाँ। I mean पूरा एक एक्स एंड आई मीन प्लस एंड माइनस को एक बार लेके आओ, तो तेरे को वो फ्यूजन में जो निकल के आता है ना, तुरंत तो डीएनए फ्यूजन में निकल के आता है, उसमें से तेरे को बहुत बढ़िया बच्चा मिलेगा। और आपको जो चाहिए बोल के एक्सेसिव इनब्रीडिंग करके आप जो निकलते हैं ना, उसमें भी आई मीन बहुत ही बढ़िया बच्चा आ सकता है, खराब भी हो सकता है। खराब भी, लेकिन कभी खराब ड्रॉबैक हुआ करेक्टर तो उसको कलिंग करना जरूरी है। जरूरी है। और अच्छा है तो उसको पकड़ लिया ना, अर्थ बदल दे। हमारी जो रूपा गाय थी वो भी ऐसा ही था ना, वो ब्राजील वाला ने 1992 में उसको वो बोला था, हम नहीं बोल रहे, वो उन लोगों ने बोला था, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट गिर काउ इन द वर्ल्ड इन 1992। रूपा बाडवा ब्राजील में रूपा बाडवा का आई मीन स्ट्रक्चर, आई मीन फोटोज भी रखा आई मीन अपना जसदन फार्म के सामने, जसदन के पुराने फार्म के सामने उसका ये रखा है। That's the beauty of it. Think some cow which took birth in Badwa later went to Jasdan, from there उसके ऊपर बहुत ही बढ़िया ब्रीडिंग करके पूरे विश्व के मैप पे लगाया, तो वो लोग उसके ऊपर दीवाना होके उसके घर के सामने बड़ा पोस्टर बना के रख दिया उसको। और उसका जो जसदन वन जो उसका इंडियन स्टैम्प में भी उसका फोटो है। हाँ, फादर देवकांत एंड मदर रूपा। और बापू अभी इन ब्रीडिंग और आउट ब्रीडिंग के बारे में बात कर रहे थे कि अभी चलो मान लो कोई नया ब्रीडर आ रहा है, तो उसको कैसा आप सिखाना चाहते हैं कि इन ब्रीडिंग कितना तक करना है, आउट वो बाहर का गाय में कितना इस्तेमाल करना है, इन ब्रीडिंग मतलब एक्सेसिव इन ब्रीडिंग में क्या होगा? देखो, इन ब्रीडिंग आपको कब करना चाहिए, जब आपको कुछ सिलेक्टिव आपको कुछ चाहिए,
जिसके ऊपर आपको आगे जाना है और आपको मालूम है कि किस गाय या किस बुल के अंदर कौन से जीन है, कौन से ब्लड है, वो पर अगर आपको कलेक्ट करके पता है, बाद में स्टार्टिंग में इनब्रीडिंग में आपको जो आपको सिलेक्टिव करने का है तब वो यूज करना चाहिए। सही सही, उसी को बोलते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे लोग बोलते हैं इनब्रीडिंग करने से ये होगा ये होगा। तो अगर आपको कुछ बनाने का है जो आपको पसंद है, वो ब्लड आप कब कलेक्ट कर सकते हैं? सही, इनब्रीडिंग करने से। इनब्रीडिंग के बारे अभी आप सिंपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अभी आप कोई भी इवन ह्यूमन बीइंग में आप देखोगे जो उसके कास्ट डिफरेंट कास्ट में जो शादी करेगा तो उसका प्रोजन ही आएगा, वो बढ़िया ही आएगी, क्योंकि दो अननोन ब्लड में से वो जो मिक्स आएगा, दोनों का जो पावरफुल जीन रहेगा वही उसमें फिक्स हो जाएगा। सही सही। लेकिन बाद में F1 F2 बाद में फिर वो दिक्कत आ जाएगी, ड्रॉबैक कैरेक्टर बाद में आएगा। F1 में तो पूरा वो अच्छा आएगा ही। सही सही सही। तो बापू अभी भाड़वा में कौन सा गाय अभी आप रखा है? क्योंकि ज्यादातर तो हमारे पास है। आपने मेरे पीछे को रहने नहीं दिया, सब लेके आ गए यहाँ पे। तो आपके पास हम दोनों एक ही है भाई, दोनों भाड़वा यही है। अमित भैया और भाड़वा दोनों एक ही है, हम दोनों साथ में है। ऐसे नहीं है कि मैं अलग हूँ बापू अलग है, नहीं वो सही है, दोनों एक ही है। जो आई मीन हेबेऊ जेनेटिक्स है वो भाड़वा है, भाड़वा है, भाड़वा है वो हेबेऊ जेनेटिक्स है। ऐसे है भाई, मेरा सब कुछ बापू के लिए है। बापू और मेरे जब भी आपको मेरी जरूरत है, मैं एट एनी टाइम रेडी हूँ, आपको जब भी मेरी हेल्प चाहिए। सही। तो सब लाइन है बापू के पास, तुम जो भी लाइन मांगो वो सब लाइन है। बापू के पीछे मैं खड़ा हूँ। नहीं, अभी जैसे कि हम बापू के बारे में महाराजा के टाइम के बात कर रहे थे कि अगर कृष्णा सिंह जी के पास जो एक बुल है, जैसा कि सुदानो पहले आपके पास आया, आपसे भुवनेश्वरी रिपीट में गया, जसडन में नहीं गया होगा, नहीं वो बाद में किधर ऐसे गया। उसका जो भाड़वा में से जो भी गई वहां गई, उसमें कुछ ना कुछ तो उसका ब्लड तो उसी में से। वो अभी बुल को पहले टाइम पे मतलब एक्सचेंज करते थे, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर स्टार्टिंग में जो हमारे यहाँ से सुदानो के से ही स्टार्ट हुआ था। फिर यहाँ जब हमारा उसका वाड़ा पूरा हो जाता था, फिर यहाँ से सब बुल हमने भुवनेश्वरी में गए थे। दे दिया पिताजी ने सब उसको यूज करने के लिए। यहाँ के बाद बहुत से गाय दी, बहुत से गाय। हमारी ये रूपा की मदर रोहिणी, वो वहाँ गए थे। और दूसरा फिर कृष्णा करके गई थी, वो गई थी। कृष्णा से भी बाद में कावेरी, कानेश्वरी, कानो, सब कुछ उसी में से हुआ। दूसरा फिर गायत्री भी गई थी, गायत्री। फिर ज्योति, अभी जो जागृति, जिम्मी, जसोमती, वो सब उसी में। वो उसी में से। वो जिन आपके हार्ट में फिक्स है ऑलरेडी। हाँ, वो यहाँ से ही पूरा गया था पूरा। बहुत सारे गाय दी थी वहाँ पे, बहुत सारे। तो इसका धन धारिका गई थी, धनलक्ष्मी गई थी। ओ धनलक्ष्मी से जो आज धनराज, ये सब बुल से वो सब डी से चालू होता है, बहुत से जे से चालू होते हैं, ज्योति से चालू होता है। हमारी भाड़वा का वही है, जो फर्स्ट लेटर है वो अलग अलग माँ के नाम से वो पूरा जो फर्स्ट लेटर है वो लाइन में से ही पूरा करते हैं। See, beauty man, they were two good friends. Yes. नहीं, मेरा बापू और घनश्याम महाराज जी दोस्त थे, और राघवेंद्र सिंह जी और घनश्याम महाराज भी दोस्त थे। राघवेंद्र सिंह जी और जसदन बापू भी बहुत उधर दोस्त ही नहीं, उधर गुरु शिष्य करने। You should see His Highness जसदन के महाराजा, he gave his highness chair to Raghavendra Bapu. The day when I went there, he said, "Bapu, आप इधर बैठना है, आप इधर बैठ." Man, the one Maharaja giving respect to one more Maharaja is too good, no? Too good. I mean, he said, "आप इधर बैठना." That is the respect he is giving to his Guru. See, no one leaves his their highness means they don't leave their major chair to anyone else. Yes. But that day he was ready to offer that chair to him because he gives that respect. He is so feeling respect and feeling he is giving. Utmost respect on Raghavendra Singh Ji. He says, I mean, हम सुना भी था, उनको कहीं पे कुछ अवार्ड भी मिल गया था। जो मिल्किंग चैंपियनशिप में जो अवार्ड मिला फर्स्ट उसको,
वो उसने गुरु दक्षिणे के रूप में पिताजी को, या पिताजी ने तो वो जो एडिशन होता था उसमें दे दिया था। That's how I mean, ये लोग बहुत रिश्ते हैं इनके आपस। हम लोग लड़ रहे भाई, हम लोग बोलते हैं मैं बाड़वाई, वो भावनगर, वो तो सब एक ही है। वो सब लोग एक ही है भाई। आज भी ये सब लोग अपने आप बात करता है। मैं देखा, मैं अपने आज से मैं वो डब्बा खोला हूँ जो घनश्याम महाराज जी प्रदीप बापू को कुछ दवा भेज रहा था। घनश्याम महाराज जी is a good Ayurvedic doctor. So he used to produce few Ayurvedic medicines which he used to send to Bapu. I have opened it a couple of times myself. I have opened the boxes and I have said, Bapu, ये सुबह लेने का, ये शाम में लेने का, ये रात में लेने का. I used to keep that boxes in a shelf. So they are very good friends. That giving and taking is always there with them. So नहीं, मेरा क्वेश्चन पूछने का ये मकसद था कि बुल या गाय जो एक्सचेंज हो रहा था, मतलब ब्लड एक्सचेंज हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि पूरा इनब्रीडिंग ही हो रहा है। नहीं, ठीक है। देखो वो महत्व क्या था एक्सचेंज करने का? इनब्रीडिंग रहता है, क्रॉस ब्रीडिंग रहता है, लाइन ब्रीडिंग, लेकिन लाइन ब्रीडिंग जो है वो सबसे सेफेस्ट मेथड, और आपको अगर कोई कैरेक्टर या पूरा हर्ड आपको सिमेट्रिकल बनाने का है तो आपको लाइन ब्रीडिंग पर ही जाना पड़ेगा। क्योंकि प्रदीप बापू ने भी कुछ गाय या कुछ बुल बाहर से लिया होगा। हाँ, स्टार्टिंग में तो ऐसे ही होता है। अगर कोई नया ब्रीडर अभी चालू करता है, वो बाहर से गाय परचेज करता है, बाहर से बुल लेता है, और हम लोगों को भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं सही नहीं है। हाँ, लेकिन कभी लेकिन उसी में भी से लेना है। जहाँ पे पहला बुल लेके आना, उधर से दूसरा बुल लेके आ सकते हैं। हाँ। और बाहर से नहीं लेके आना है। अभी बापू को बोलो, बापू अगर किसी के पास यूज करो, मैं दूसरा नदी देता हूँ। अगर 1 करोड़ का भी बुल कोई मेरे को देगा, मेरे हाथ में नहीं यूज करूंगा, क्योंकि उसका पेडिग्री मालूम नहीं है, उसमें कौन सा ब्लड है। अब अगर पेडिग्री भी दे देंगे तो यूज करेगा बापू? नहीं, मैं नहीं यूज करूंगा। भावनगर का देगा तो भी अभी नहीं, तो वो यूज करूंगा। अगर वो मेरे पे काउंटिंग करूंगा, वो पेडिग्री के काउंटिंग करने के बाद पेडिग्री के हिसाब से आप देखेगा। लेकिन वो पेडिग्री भी सही होनी चाहिए ना। सही अभी तो मेन वो है मार्केट में। छोटा फार्मर जो है वो लोग क्या करते हैं, वो मतलब लोकल गोपाल मित्रा जो है उनके पास जाएंगे, सीमन खरीदेंगे, ठोकेंगे। लेकिन सीमन भी सही होना चाहिए ना। अभी सीमन का बहुत चल रहा है कि बोलेगा एक, देगा और कुछ। मेरे फार्म में भाई, मैं कुछ नंदी का, मैं वो कौन से लाइन वाला नहीं बोलता हूँ। हाँ। वो एक नंदी का सीमन में गाय में डाला, बच्चा HF क्रॉस आ गया। तो वो हो रहा है पूरा मार्केट में भी। जो ये ऊपर नीचे करने वाला लोग है, जब तक वो क्या बोलता है, गलत करने वाला आदमी जब तक है वो चलता ही रहेगा। लेकिन ये लोग कभी नहीं सोचते हम ये करना है, इनको हमेशा चाहिए इनका नाम बढ़ने के लिए। कभी भी कोई भी हमारे ऊपर उंगली नहीं। मैं क्योंकि अभी लोकल में किसान लोग जो गिर गाय रखना चाहते हैं, अगर मान लो वो लोग आपस में ऐसा बांट ले तो मतलब रिजल्ट कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा, क्योंकि गिर आप देखोगे तो उसका काउ डंग, यूरिन, अगर किसानों को एक दूसरी बात मैं बता दूं, अगर आपको सही शुद्ध आहार लेने का है तो आपको कैटल रखना ही पड़ेगा। वो अपने आप फार्म पे रहेगा तभी आपको सोलिड। बाकी आप डेयरी में जाएंगे, दूसरी जगह पे जो गवर्नमेंट जो है उसी में सब अभी केमिकल का है। अभी वो एक आया था नोएडा का, 1 लीटर केमिकल में से 500 लीटर्स मिल्क वो बनाते हैं, और उसने वो स्वीकार भी लिया कि मैं लास्ट 25 ईयर से ये बिजनेस कर रहा हूँ। वो वीडियो भी आया था पूरा, और उसने वो स्वीकार लिया मैं 25 ईयर से कर रहा हूँ। और अगर ये सब नहीं होता तो सबका वो फुल सब लोगों को मिल्क भी नहीं मिलता। अगर खुद को गढ़वाल ले लो, लाइक ये भावनगर, जस्टन, बाड़वा, भुवनेश्वरी पीठ, आजकल नए जनरेशन का ब्रीडर, ये सब लोग, हम सब लोग इसे हैं, इसीलिए अच्छा दूध अभी अच्छा घी ये सब कुछ मिलने का स्कोप बढ़ गया। अगर ये गाय नहीं है ना, अगर उस दिन प्रदीप सिंह रावल गाय के ऊपर नहीं बैठा काम किया तो अभी आज खत्म होता। सही वो तो लेजेंडरी थे। आई मीन वो गुरु उधर बैठा तो बाद में सब A2 ghee has got its own capacity of market.
तो क्योंकि उसमें से मतलब गाय में इतना इम्यूनिटी रहता है तो वो दूध के हिसाब से बाहर आएगा, सही सही जो हम कंज्यूम करते हैं। सही सही यहाँ हमारे यहाँ लोकल में कोई नहीं इतना मानता है, लेकिन वो ब्राजील वालों कितने साल पहले वो लेके गया उन लोगों ने। 1830 सही, भाई, सही, 1830, सही, 35 1828 36 में मेरे 20 पास सही। एक बुक है हम्म, कुछ वो $10,000 वर्थ बुक है। हम्म, उस बुक में पूरा पेडिग्री, हम्म, हम्म, हर किसी गाय, हर किसी नंदी जो इंडिया से उधर गया उसका उस सब का पेडिग्री आई मीन दिखाता हूँ कि ये सब कुछ इधर से लेके गए वो लोग। और उनके पास भी अच्छा गाय गाय है, है। ऐसा नहीं कि उनके पास अच्छा गाय नहीं है, वो थोड़ा एक्सेसिव ब्रीडिंग भी कर दिया। दैट इज द ओनली प्रॉब्लम। एंड सी दे रिस्पेक्ट अ काउ वेरी मच, बट समवेयर दे आल्सो use oxytocin to take the milk, हाँ, which we never like. we never like. Yeah. तो वो सब मतलब हमारा जो ट्रेडिशनल वे है, वी फॉलो दैट। That's their way. I mean, they have their own explanation for that. We have our own explanation for this. बापू एक बात मेरे दिमाग में वो नहीं बैठती, वो लोग हमारा प्रोडक्ट गिर इंडिया का प्रोडक्ट है, सही सही ब्राजील लेके गया, वो पूरे मार्केटिंग पूरे वर्ल्ड में वो लोग कर रहे हैं। सही मीन्स मार्केटिंग में वो हमसे तो एक्सपर्ट है ही पूरा। बापू मार्केटिंग में इंडिया जितना एक्सपर्ट है कोई नहीं एक्सपर्ट। एज ऑफ नाउ हम थोड़ा ऊपर है। बापू ऐसा है तो अपना दो बड़े लोग आज जो इंडिया को लीड कर रहे हैं, अदानी भाई और अंबानी भाई। लेकिन इस फील्ड में मैं बोल रहा हूँ, कैटल ब्रीडिंग में आप देखो प्रोडक्ट हमारा वो पूरे वर्ल्ड को अभी वो ब्राजील के ऊपर बात कर रहे हैं तो ब्राजील में क्या होता है, वो लोग हाथ में बहुत कम निकालते हैं दूध। जैसे लोकल छोटा फार्मर है 20 गाय, वो उसमें निकालते हैं। मोस्ट ऑफ द ये ब्राजील में बड़ा बड़ा फार्म जो है वो सब मशीन इस्तेमाल करते हैं। गिर में, HF में नहीं बोल रहा हूँ, गिर में या ओंगोल में, इसमें देसी गाय में, हमारा इंडियन का जो देसी गाय है उसमें वो मशीन डालते हैं, तो उसका रिजल्ट उधर अच्छा है। मगर इधर बड़ा बड़ा फार्म में ये गिर, जैसे कि हम भी अभी चालू कर रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अभी भी, तो लोग बोलते हैं नहीं देसी गाय में मशीन नहीं डालना चाहिए, तो उसका आपके बारे में क्या? मैंने तो यूज नहीं किया है मशीन, मेरे पास तो बहुत छोटे हर्ड है और वो मैन पावर है, लेकिन हम लोग गए थे तो वहाँ ब्राजील में तो वो लोग एक्सट्रैक्ट करते ही है मशीन से। और मशीन से क्या होता है मेरे हिसाब से, जो मैं सोचता हूँ, मिल्क तो पूरा एक्सट्रैक्ट हो जाता है, और यहाँ जो लेबर लोग रहे वो कहीं ना कहीं ऐसे रख देते हैं, तो उसकी वजह से अडर प्रॉब्लम, मिल्क प्रॉब्लम वो हो जाता है। लिटरली आप सही क्वेश्चन पूछा। अभी देखो जो अपने भाई लोग हैं, शायद आज हमारे फार्म में अच्छे भाई लोग हैं, कहीं ना कहीं एक दो स्टूपिड भी निकल जाता है, तो वो एक दो इडियट्स जो ये करता है दूध पूरा नहीं निकलता है, उसको ऐसा रहता है ज्यादा काम नहीं करना, जाके बैठना, ये सब कुछ रहता है। ऐसे लोग क्या कर देता है, बहुत किसानों के घर में आज ये प्रॉब्लम हो रहा है, जो दूध निकालता है ना वो दूध उधर ही मार देता है, वो दूध उधर ही मारने से मास्टाइटिस प्रॉब्लम इसकी वजह से वो टेस्ट का प्रॉब्लम आता है, हो जाता है। नहीं तो वो प्रॉब्लम नहीं। यूज ऑफ मिल्क मशीन टू एक्सट्रैक्ट मिल्क इज अ वेरी गुड आइडिया ऑन टुडे। अभी आज हम टेक्नोलॉजी के ऊपर नहीं बैठेगा, आगे नहीं जा सकते, आज ही चेंज होना। आपको मैन पावर कितना मिलेगा? जैसे कि हमारा ये बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि अभी देखिए अब ब्राजील में तो आपने बहुत गाय देखा होगा, आंचल किसी का भी लंबा नहीं है, ठीक है, तो अभी जो लेबर लोग है वो निचोड़ने के टाइम आंचल को खींचते हैं और अडर भी टूट जाता है। हाँ, तो अडर भी बहुत बड़ा हो जाता है, जैसे कि कुछ अडर तो नीचे तक आ जाता है, तो वो मतलब गाय का मिस्टेक नहीं है, वो मेन की वजह से वो। और ये अभी मार्केटिंग ब्राजील ये सब कुछ लेके आ गया। मैं एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूँ बापू, देखिए आज भारत विश्व गुरु है, ठीक है, हम बोलते सब दुनिया में हर चीज गया है भारत से, मैं ये मानता हूँ, चाहे वो गाय हो या टेक्नोलॉजी हो, सब कुछ इंडिया से ही गया, मैं ये मानता हूँ, सही है। और इससे मुताबिक अभी अपना गाय को ब्राजील में वो लोग ब्रांडिंग कर रहा है, वो लोग विश्व में बेच रहा है, कि वो लोग सेंट्रल अमेरिका में दे रहा है, यूएस में। भाई यूएस का इतना वीडियो आ रहा है जहाँ पे गिर है और ओंगोल भी है, गिर और ओंगोल यूएस में है, ऑस्ट्रेलिया में, सब जगह में ये वो लोग दे रहे हैं।
ये हम क्यों नहीं दे रहे बापू? ये लिमिटेशन हमको क्यों लगा दिया? क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज भी है, गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। अगर ब्राजील की पूरी इकोनॉमी वो उसका ज्यादातर इकोनॉमी तो तो यहाँ गाय पर के भी ऊपर है। कुछ लिबरल होके उन लोगों को देना चाहिए। तो बाहर की जो है, जो ब्रीडर्स, वो लोग यहाँ आएंगे तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी बढ़ सकती है। सही सही। मेरे को ये हमेशा ये है, अभी हम एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट करने में भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फैक्टर वो रूल्स एंड रेगुलेशंस है क्यों है कि हम कहीं ना कहीं बाहर का खून लेके आके अपना खून बर्बाद करेंगे बोल के गवर्नमेंट उस रिस्ट्रिक्शन लगाया। और वो तो लगा रहे हैं अमित भैया, लेकिन जिसकी जरूरत नहीं है वो लेके आते हैं, और जो यहाँ से जो जाके जो हमारे देश को मिलता है वो नहीं कर रहे हैं। सही सही। बाहर से उन लोगों का सीमन डोज मंगवाते हैं यहाँ पे। बहुत 40,000 डोजेज आ गया। सही। और हम लोग वहाँ जाके देख के आए, हम लोग जाके देख के आए कि वहाँ के वो जो बुल है और उसके बुल में और हमारे यहाँ जो अच्छे नंदी है उसमें भी वास्ट डिफरेंट है, उससे भी बेटर है। तो हमारी गवर्नमेंट ये जो अच्छे अच्छे बछड़े हैं वो उसी में से क्यों नहीं बना रहे हैं? सही। आज हम क्या बोल रहे हैं, इधर से भाई कुछ मत दो, इधर से सीमन बेचने के लिए सोचो। हाँ। इधर से एम्ब्रियो देने के लिए सोचो। वो जाएगा, वो उधर भला करेगा अपना। किसानों का इधर क्या है, इकोनॉमिक्स बढ़ेगा। तो हमारे जैसे 10,000 लोग इसमें फिर से आएंगे, गाय के ऊपर काम इंडस्ट्री हो जाएगा। हम कम से कम आज दूध का इंडस्ट्री कुछ 1-2% होगा जीडीपी में, वो और बढ़ाना चाहिए, वो बहुत बढ़ जाएगा। यही एक अलग से अभी कुछ पूरा नया एक वो आ जाएगा, तो नए लोग जो इस लाइन में आ रहे हैं उन लोगों को भी बहुत बड़ा सपोर्ट मिल जाएगा, उसका भी बढ़ जाएगा। जैसे कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे, इटली में भैंस के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उनका धंधा तो चीज ये इसके ऊपर जाता है, जो मिल्क का बाई प्रोडक्ट। लेकिन यहाँ पर जो ब्रीडर है उसको भी फायदा होगा अगर वो गवर्नमेंट लिबरल होके कुछ परमिशन जैसे कि इटली में अभी ब्राजील वाले लोग जाके तो वो लोग यहाँ आएगा। हाँ, उसके लिए भी मार्केट हम भी जा सकते हैं उधर। अभी मार्केट में देखिए, अभी कितना लोग एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं बापू? बहुत कम लोग, बहुत कम है। ठीक है, वो भी क्या है, मतलब प्राइवेट इंस्टीट्यूट जैसे बहुत कम है इंडिया में। तो गाय के ऊपर, या मतलब सिर्फ गाय के ऊपर नहीं, घोड़े जो कुछ भी हो, एनिमल हस्बेंड पढ़ने वाले ही बहुत कम है। तो उसका मार्केट जो है वो ऐसा लुप्त होता जाएगा। वर्ल्ड में बहुत बड़ा मार्केट है। जैसे कि हम सोचो, अभी तो इटली का नाम ले लो, इटली इज द हाउस ऑफ चीज। यस, वो उधर चीज जो बनता है वो वर्ल्ड वाइड इसका डिमांड। सही। तो उनको बफेलो चाहिए। आज हमारे पास बहुत वर्ल्ड के बेस्ट बफेलोज अभी आपके फार्म पे है। तो हमारे पास अच्छे बफेलोज है। हाँ। शायद हम उनको जो खून चाहिए हम दे सकते हैं, इधर से दे सकते हैं। तो वो जो गैप पड़ा है हमारा देश में, लिटरली एक अगर ये एक्सपोर्ट का जो ताला लगाया ना उसको खोल दिया तुरंत पूरा मार्केट आ जाएगा, इकोनॉमी पूरा लोग उधर से इधर आके खरीदने के लिए बैठेगा। हर स्टेट में एक दुकान खोलेगा जहाँ पे वो खरीदने के लिए बैठेगा। हम जैसे हम डेयरी में दूध लेके जाके देते हैं ना, ऐसे हम सीमन लेके जाके देना पड़ेगा, एम्ब्रियो जाके देना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। अगर वो ताला जो लगाए वो खोलना पड़ेगा। सही। सब लोगों को फायदा भी होगा ना, जो भी जिसके पास नॉर्मल किसान का भी इकोनॉमी बढ़ेगा, उसका भी बढ़ेगा ये पूरा। लेकिन तब जिसका डिमांड होगा, बोलो किसका डिमांड ज्यादा होगा? बोलो जिसके पास अच्छा हर्ड रहेगा, पेडिग्री रहेगा। पेडिग्री इज मस्ट फॉर ब्रीडिंग। हर किसी के पास है पेडिग्री, जिसके पास रहेगा वो बनाएगा। नहीं, वो पेडिग्री हर कोई किसान भी बना सकता है। अच्छा लाइन ब्रीडिंग करो, आई मीन अच्छा आउट ब्रीडिंग करके उसको एक लाइन में लेके आके उसको प्रॉपरली ब्रीडिंग करते रहो, तेरे को भी अच्छा दाम मिलेगा। यू विल आल्सो बी सेलेक्टेड आउटसाइड इन द मार्केट। सही। और मार्केट में अभी नाम कमाना बहुत मुश्किल है, और ईमानदारी भी होनी चाहिए। सही। सिर्फ पैसा ही नहीं, आप प्रोडक्ट बनाओ, लोग खुद आएंगे। बहुत सारे लोग आज गाय एक दिखाते हैं, उसका पेडिग्री एक और रहता है। नहीं बापू, हम आपको 10 लाख पैसे देते। हाँ जी, ठीक है अभी, और आप अपना पेडिग्री थोड़ा ऊपर नीचे करके दे दो, हम बोलेगा तो आप करोगे। लेकिन बाद में तो भी है लोग नहीं वो करता ही नहीं कभी।
तो दिस इज हाउ, क्योंकि चलो अगर मैंने कर दिया, लेकिन आपको मालूम नहीं, ऊपर वाला तो देखता है ना। सही वही इमेज है हमारी मार्केट में। सही सही कभी भी गलत करने का ही नहीं किसी को, क्योंकि आप लोग जो ब्रीडिंग करना चाहते हैं, अगर वो पेडिग्री के मुताबिक आप करेंगे, अगर वो गलत मैं दे दूंगा तो आप जो करना चाहते हैं वो आपको प्रोडक्ट वो नहीं गाय मिलेगा। दिक्कत में होगा। एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा एंड किसी में को। तो फिर आप भी थक जाएगा, यार ये इतना साला पैसा खर्च किया, इतना ये किया, फिर भी ये रिजल्ट नहीं आया। वो रिजल्ट नहीं आया उसका कारण क्या है? वो गलत पेडिग्री। सही सही। तो एंड ऑफ द डे हम जो भी करो, जो भी लाइन करो, जो भी कुछ भी लेकिन करो, गाय के लिए कुछ अच्छे कर रहे हैं। गाय के लिए अच्छे करो, और पेडिग्री जरूरी है। जरूरी है। हम कोई भी नंदी लेके आ रहे हैं ना, उसका नंदी का अच्छा पेडिग्री देख चार्ट करके दो वेरीफाई करके वेरीफाई करो। जैसे कि जैसे तुम बोल दिया भाई मेरे पास नंद का बेटा है, नहीं तो रुस्तम का बेटा है। मैं अगर अभी मेरे को ही एक कल बापू ने बोला, मैं शॉक लग गया मेरे को एक बंदा बोला ये रेडिनो का बेटी है। बापू बोला भाई रेडिनो कब सीमन ही कलेक्ट नहीं हुआ, हमने बनाई ही नहीं था तो कब से वो आ गया मार्केट में। तो मेरे को ही लगता है कभी कभी नहीं ऐसा बहुत बहुत सुनने को मिला है। तिलक सिर्फ का रेडिनो का नहीं, तिलक का भी कभी नहीं बनाया आपने। सिर्फ रेडिनो का मैं वही बोलने के लिए आया अभी। तिलक का तो आपने कभी भी सीमन कलेक्ट ही नहीं किया। कलेक्ट ही नहीं किया, और फिर मार्केट में उसके भी प्रोजेक्ट। तो तिलक का बाहर आया होगा तो या भावनगर से आया होगा या बाड़वा से आया होगा। मैंने तो बनाया ही नहीं। जो बाहर की गाय अगर क्रॉस किए थे तो मेरे को तो मालूम होगी ना। इधर अपने स्टेट में कर्नाटका में ही बहुत लोग बोलते हैं मैं भावनगर से लेके आया। सही। मैं जाके बापू के साथ खड़े होके एक फोटो ले लेता हूँ। ठीक है, कल सुबह मैं आके बोलता हूँ भाई मैं बाहर से बापू से बैल लेके आया। बापू को वो इनका लाइफ में इतना काम रहता है, वो उसको कभी देख भी नहीं कर पाता, वेरीफाई भी नहीं कर पाता। कभी कभी कोई लोग मेरे को बोलता है मेरे पास, मैं उसको सिंपल ही बता देता हूँ, आपने कब लिया उसको पूछो, कब उसने कवर किया, कहाँ से लेके आया था, लेके गए तो मेरे रजिस्टर में तो वो लिखा होगा ना, रिमार्क में तो होगा ना। जिसको भी बेचते हो वो सब रजिस्टर में रखता हूँ पूरा। सही। मैं तब फिर वो बोलता है तो ऐसा होगा, तो बस वैसा जो आप समझो। मैं बापू को बाड़वा का गाय चाहिए मुझे। हाँ। मैं मार्केट में दुकान खोल दिया। किसके पास बाड़वा का गाय है लेके आ जाओ। तो इतने गाय आया कि भाई ये ऋषभ का बेटी है, उसका है, इसका उसका इतना है। मैं हर कोई गाय का फोटो सीधा बापू को, ये आपका है क्या आपका है? नहीं, उसको पूछो इसका बाप कौन है। वो सही है ना, क्योंकि तो जो खड़ा किया है वो बगल में है आपके पास। तो ऐसा मेरे को ही ऐसे चल रहा है, तो सब लोग को बहुत चलेगा। लोकल लोग सबको छोटा मोटा देने के लिए प्रदीप बापू नहीं है। सही। भावनगर के नाम पे आजकल बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन थोड़ा वेरीफाई करो। भावनगर से लिया होगा मगर सागवाड़ी से तो नहीं लिया होगा। भावनगर में भी बहुत सारे ब्रीडर है, ऐसा नहीं है कि इसीलिए तो मैं बोलता हूँ ना, अभी जो यंगस्टर आते हैं या जो भी आते हैं, मैं उसको बोलता हूँ आप अगर आपको स्टार्ट करना है, पहले आप स्टार्ट मत करो, पहले कुछ नॉलेज गेन कर लो, पहले रिसर्च करो। आपको मालूम है तो कोई आपको चीट नहीं कर पाएगा, और आपको मालूम भी पड़ जाएगा उसके साथ कोरेस्पोंडेंट करने से ये बंदा कितनी लिमिट में है। बातचीत में मालूम पड़, क्योंकि आपके पास नॉलेज होगा तब आप जज कर सकेंगे सामने वाले को। सही। तो that's it. I mean, this is how the breed of care is. Bapu ka insights about Bhadwa, about how we should do the breeding. Focus on breeding. ये शायद हम आपको पूरा इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा, लेकिन कुछ ना कुछ नॉलेज मिल जाएगा। जैसे कि छोटा मोटा किसान है तो उसको, और मेरे पास जो भी कोई आता है पूछता है, मेरे पास जो भी है मैं सबको वो बांट रहा हूँ। आपका दुकान हमेशा 24 तो हमेशा ओपन है, रात को भी फोन आएगा, जो भी है, जो मेरे को मालूम है मैं वो बताता हूँ, जो मालूम नहीं है। सही। जैसे today we are in considering Pratap Bapu here, I should also thank Pradeep Singh Rawal for this gear to be so good. Yes. He is a legend. Yeah, he is a legend. जो है वो उसी के वजह, वो प्रदीप बापू से है। उसके पीछे राघवेंद्र सिंह जडेजा जी,
फुटस्टेप्स ऑफ फुटस्टेप्स, आई मीन उनके प्रदीप बापू। फुटस्टेप्स बहुत जरूरी बहुत है। बहुत और उसके साथ जसडन का कच्चर साहब, नहीं तो घनश्याम महाराज जी, उन लोगों ने सबने भी या बहुत मेहनत आज की। नया नया ब्रीडर्स है, पोरबंदर से, राजकोट से या मोरबी से, नहीं तो अहमदाबाद से, कोई किधर से भी बहुत दोस्त लोग हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि आई मीन नहीं, सब सिर्फ गुजरात से नहीं, बहुत सारे लोग साउथ इंडिया, में साउथ इंडिया बहुत सारे लोग हैं, नॉर्थ से भी है, सब कुछ, सब everyone are doing doing it's a very good, beautiful that job. is very good for I mean, गिर I'm happy that ये गाय अच्छा हो रहा अच्छा हो रहा है है, बस भाई गाय बहुत अच्छा at the end of the day our commitment is that only. that सही। only. और इस गाय को अच्छे होने में I mean, जो भी मेहनत कर रहा है सबके लिए सलाम। इससे पहले बड़ा सलाम अपना बाड़वा बापू लोग को, क्योंकि ये इतना लोग इतना साल से disciplined ये breeding, हाँ very इतना disciplined. साल से इसको इतना मेहनत किया है ब्रीडिंग I के ऊपर। can see some outbreeding happened in different lines, but that outbreeding has never happened in भाड़वा। बाड़वा। That's the beauty. आज मैं बोलता है ना, मैं प्रदीप बापू के पास इतना लंबा रिश्ता था, जब बहुत साल का ट्रैवल था। मैं बापू को पूछा, बापू आई नीड फ्यू काउस फ्रॉम योर फार्म। बापू बोला, बेटा मैं नहीं दे पाऊंगा, मैं ऑलरेडी किसी और को दे दिया है, और अगले 100 जब बनेगा तब मैं तेरे को देता हूँ, अभी तेरे को चाहिए। मेरा एक दोस्त है, उनके पास जाओ, अच्छा गाय मिलेगा। वो उनका दोस्त था, दोस्त था राघवेंद्र सिंह। दो they were relatives, but just like friends only, friends. वो हमेशा I mean I am getting goosebumps, I mean वो हमेशा किसी भी गाय को देखने जाए, नहीं तो बफेलो को सेलेक्ट करने जाए, तो वो लोग किसी को कोई गाय को एवेल्यूएट करना है, प्रदीप बापू used to consider Raghavendra Bapu's words for sure, because he was very strict in selection, very strict in Brazilians. If Raghavendra Bapu tells no to this crop, Brazilians never used to. उन लोगों का जो प्रोजेक्ट था एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट था, तो ये वन ऑफ रिबेरो का और जसदन का, तब उसका डॉक्टर क्लोडियो करके आया था। वो सीधा भाडवाया और वहाँ के पिताजी को बोला, आप जो भी गाय सिलेक्ट करोगे मैं उसको लेके उसका, वो उसने बोला जो वो गाय सिलेक्ट कर उसी में से ही वो प्रोजेक्ट के लिए सिलेक्ट करने का। भुवनेश्वरी में भी मेरे पिताजी को भेजा सिलेक्ट करने के लिए गए, जसदन में भी वो सिलेक्ट करने के लिए। That's how much they have trusted. But main trust, what I'm saying. Yeah. And when somebody keeps trust on you, your responsibility becomes double. You should adhere to that. Yeah. It becomes double. Because blindly if somebody is having faith in you, But you should try to fulfill all his faith. बापू आपने कभी भैंस के ऊपर नहीं गया? नहीं, मेरे ग्रैंडफादर के टाइम पे भैंसें थी। हाँ, जैसे कि प्रदीप बापू ने जाफराबादी में तो कमाल कर दिया। वो डेयरी किया था उस टाइम पे, और बोर्डिंग था वहाँ पर, वो घी और सब। आपको कभी भी भैंस के ऊपर शौक नहीं गया? बफेलो का मिल्क भी टेस्ट नहीं किया। अभी आप प्रताप बापू को पूछ लिया, ठीक है, बड़े बापू को ये क्वेश्चन पूछ नहीं दे सकते, तो उसका आंसर आएगा तो लाइट नहीं कर सकते। वो देखो, बुल किसका व्हीकल है? मतलब बुल जो है, छोड़ दीजिए बाबू। ओ ऐसा समझ में आया। So it's like that. I mean, they consider it something else. सही। I mean, irrespective. I mean, everyone have their own यमराज का। perspective. Yeah, I didn't wanted to go there. This is Shankar. So I didn't wanted to go there. Everyone has got their own perspective. हाँ। Bapu had his own perspective. Raghavendra Bapu has his own perspective. प्रताप बापू थोड़ा टेक्नोलॉजी के ऊपर जाना चाह रहा है अभी। तो जैसे टाइम चेंज होता है, चेंज होना चाहिए, अपग्रेड होना चाहिए बस। इट इज लाइक दैट। आई मीन आज सब लोग जरूर बाड़वा जा सकता है। बाड़वा में आज एवरीवन इज वेलकम एट एनी टाइम। बढ़िया नंदी पैदा हो रहा है, और जिसको भी मैं ये बोलना चाहता हूँ, हर किसी को ब्रीडिंग करना चाहिए और डेयरी फार्मिंग करना चाहिए। एक बार बाड़वा जाना चाहिए, और 2 दिन रहना आपस में, उधर राजकोट में रह के 2-3 दिन जाओ, वहाँ पर भी रह सकते हैं, वहाँ पर भी रह सकते हैं। काइंडनेस है। आई मीन सीखो,
इनके हाँ। घर में जाके सीखो, आई मीन बड़े जैसा- बाबू को मिलो, छोटे हाँ। बाबू को मिलो, सीखो ब्रीडिंग क्या करना है, कैसे करना है, गाय कैसे और सेलेक्ट करना है। दूध का गाय कैसे, वो दूध का गाय सेलेक्ट करना ही बहुत मुश्किल है। हर कोई गाय बड़ा बड़ा अड्डर वाला दूध नहीं देता है। तो दूध नहीं उसको देता। सेलेक्ट कैसे करना है, वो जीन रहेगा तभी वो निकलेगा, वरना हाँ तो वो सही, क्योंकि हमने तो बहुत सारा देखा है कि छोटा अड्डर में वो 7 लीटर दूध मारता है। तो उससे ज्यादा जया, क्या चाहिए। हाँ। सबको छोड़ दो भाई, जया भी, जया सही, जया ले लो, और जया में कॉम्पैक्ट इतना फीट दूध कितनी, है, हाँ कोई साल भर दिखाएगा भी, दूध ऐसा दे रहा लगेगा है। भी नहीं कि इसमें इतना निकलेगा, सही क्योंकि वो जिनकी वजह से है, सही सही, वो ब्रीडिंग की खून वजह का से। वजह से। 8-8 लीटर वाला गाय साल भर 6-6 लीटर, साल भर 6-6 लीटर दे रहा है, तो बहुत बढ़िया है। जिस दिन से चालू किया आज भी जाओ 6 लीटर, तो सही। ऐसे आई मीन वो मतलब लॉन्जिटिविटी रहना चाहिए दूध में, जैसे कुछ कि एनिमल अभी में ज्यादा बोलते हैं कि इतना मिल्क है, लेकिन उसका ड्यूरेशन कितना है वो हाँ देखना वो चाहिए। मायने रखता है। जैसे कि अभी आज 6 लीटर दिया और 3 महीने में खत्म हो गया, तो फिर उसका क्या, जो Value लॉन्ग नहीं है। लॉन्ग टाइम पे जो लैक्टेशन अगर है, 6 लीटर दे रहा है और Last 11 तक महीना 12 महीना दे रहा है, तो वो बहुत वो ज्यादा बढ़ अच्छा गाय जाता है। है। अच्छा गाय है। और आजकल every dairy का year- सिस्टम भी अलग से चलता है। हम्म, लॉन्ग रनिंग काउस कैन नॉट सेट सही। इन अ डेयरी, और- शॉर्ट रनिंग काउस इज रिक्वायर्ड। और दूसरा क्या है कि हर साल हर काऊ में से एक बच्चा लेना बच्चा जरूरी लेना है। जरूरी सही है। सही, साइकिल That That is important most for dairy to important. sustain. साइकिल रेगुलरली रन करना एक चाहिए। साल पूरा दूध ही ले रहा है ना, हाँ। यू आर एट द बिगेस्ट लॉस। यस, तो वो हर साल एक बच्चा लो, उसको बच्चा होने के बाद दूध के तीन टाइम चार पे तीन हिट चार आना है, महीने में वो गब होना है, कंसीव होने 7 जाए। महीना दूध अच्छी बात है गाय में, 6 से मगर 7 महीना वो साइकिल रेगुलरली रन होना चाहिए। जरूर। 3-4 महीने में फिर वो प्रेग्नेंट हो जानी चाहिए। सही। और उसको लास्ट में तो और- मिल्क उसको छोड़ना पड़ता है, हाँ। ऑल्टरनेटिव डेज वन। Yes. हाँ हाँ, जो ड्राई करने का ड्राई जो करने के लिए वो करना- तरीका है, वरना- करना पड़ेगा। वरना नेक्स्ट लैक्टेशन में कम मिल्क हो जाएगा, कम सही, क्योंकि सही, लास्ट सही। तक वो एक्स्ट्रा कर देगा। काफ भी है पेट में बढ़ रहा है, उसके लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए, चाहिए। वरना वो नेक्स्ट काफ में और नेक्स्ट लैक्टेशन के मिल्क में भी इफेक्ट होता है। असर पड़ता है उसका। तो बापू, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल इनसाइट्स। Thank you very much. बहुत सारा नॉलेज शेयर किया आपने। भैया, thank you. So, guys, I want to thank His Highness Mr. Pratap Singh Ji Jadeja ji on behalf of Hebewu Genetics. So, thank you, Amit sir. Thank you. सार बोल दिया। वीडियो के सामने सार बोल दिया, बाहर अमित अमित बोल दिया। तो चलो चलो, thank you, I mean thanks for watching us. I mean, as I always tell, keep watching us, keep follow us, subscribe our channel, hit the bell button, you get more updates. Somewhere if we get very genuine people, we make beautiful videos out of it. I mean, in this entire video you can find at least one pointer if it is hitting Helpful you to for- change your dairy. Helpful That's a big for- part. I mean, that's what we actually want. I mean, Yes. हमको इससे कुछ मार्केटिंग या ब्रांडिंग कुछ नहीं चाहिए। I mean, कहीं ना कहीं किसी किसी को को कुछ मदद knowledge हो मिलना गया। मदद हो चाहिए। जाएगा। कोई ना कोई इससे थोड़ा चेंज करेगा तो भी अच्छा है उनके हर्ड के लिए। आज मैं कर लिया भाई, मेरे को दो अच्छे गुरु मिल गया। सही। एक तरफ द मैन, द Zebu लेजेंडरी मैन प्रदीप बापू था, दूसरी तरफ राघवेंद्र सिंह जडेजा जी, और साथ में प्रताप बापू। तो ऐसे हर किसी को नहीं मिलता है। तो इनके सबके लिए थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन, बाद में सीधा उनको एक घर पे जाओ, बात करो, मिलो, बहुत नॉलेज मिलेगा। I mean, this is what we wanted to share, and thank you, Babu. Thank you very much. Being Thank a you. part of our Thank you. journey. Thank you. Thank you.